So I'm spotlighting you, Bumaji. Already the class has taken time, but I forgot to. Yeah, please. Uh, First, arugula juice with tender coconut. Next, apple pomegranate with honey. Hmm. That's all. After 11:30, I eat lunch. Lunch means two veggies, little bit rice, only hand pounded rice or black rice. Okay. Then after nuts, ragi kanji, like that. Um, Ragi kanji nuts means around 4:30. Mm-hmm. After that, night 8:30, 8:30 or 9 o'clock idli or sometimes curd rice with nartanga pickle. Okay. That's all, ma'am. But I started like this only 15 to 20 days only. So did somebody suggested you to take your all the diet on this particular time? No, 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 no. Self managed it like that I am going to take for my own life for my own way, that you chose to have all these foods all by yourself. Yeah, Oh, is it? my own idea. Okay. Have you taken by any chance, like, are you interested in any of the dietitian course, diet and nutrition course? No, first I finished the yoga teacher training, then only I started that one. Oh, I think Umaji, you should do the diet and nutrition course. I think for that, because I am not really, I also find some kind of a difficulties in all of that. Sometimes I feel like that doing yoga is good and Okay. good to do yoga and everything, but since sometimes I feel like that to have a healthy lifestyle, I should also have, a good diet, and that will also energize. So with No. that way, always in the yoga, you will find that many people will be required as a dietitian as well to give the consultation. Yeah, because food is a medicine, no. So first we correct the food. Meanwhile, we do the yoga. Hmm. In the mind also, we have to prepare the always japa means nama, rama rama. Say like that. If we have a time, means we always say Rama or Krishna, like that. Then only mind will relaxed. Okay, okay. So if any problem we have means we tell to God, then relaxed, and we always do the regular work like Rama. Oh, nice. So Good. I followed Rama, Sita, Mm-hmm. like that. Okay, okay. Good to hear that, Umaji. Good to hear that. So, how long do you practice yoga? 1 hour since in the morning, from getting up, like when you get up in the morning, since how long? 1.5 hours. 1.5 hours you practice yoga. Yeah, first stretches, then yoga asana. All right. Okay. I think today's class is going to be only, we'll talk about it. So, okay. So, let us have something to, if anybody wants to share anything, they can let me know. It's very good, Bomaji, that you are having your sattvic diet, and I think with what you have said, it's going to be it's going to make others as well think that what changes the people are required to make in your diet as well. तो सभी लोग सुन लो कि जैसे बुमा जी भी बहुत अच्छा अपना डाइट का उन्होंने बिल्कुल टाइमिंग के अकॉर्डिंगली अपना डाइट को बिल्कुल फॉलो किया है. सो इट डिपेंड्स कि उनके पास अवेलेबिलिटी क्या है, लाइक अगेन.
So what happens that she is preparing herself to have a very healthy lifestyle, starting her day from 3:30 in the morning and ending at 11 a.m. 11 p.m. And I think Bhumaji, you do not take any break, or do you take any break? You're so energetic. Ma'am, actually, only 20 days only I started this type of menus. Before that, I eat only more rice, little bit means what, veggies. Uh-huh. But at that time, I more time I feel sleepy. Acha. So, Okay. so I think this is the food is not proper. Then I change this type of style. Hmm. Okay. Great. Nice. Yes, we generally have the kind of the food when it is really heavier, na. People tend to feel a letharginess. Like despite even if you'll think that you're very energetic. I'm just talking generally that people who feel like that they are energetic and there is no issues they are having and following their own proper routine. So some kind of a diet that is required to make certain changes in the routine in such a way that it keeps you really light. So that entire day whenever you are working, you do not feel that tiredness. Just like as Bhumaji has said. So anybody else who wants to share about their own thing about having, like what changes you have made in your healthy routine. I think today's class, though, it's just going to, share all of your different things. So it's good to have such classes as well. I think probably I will uh, take today's class for sharing your way of step ahead towards the healthy lifestyle. Swati ji, you want to say something? यस मैम। Or I can मुझे also spotlight you as well. हाँ. मैम मुझे ये बताना है कि दो दिन पहले हमने त्राटक का जो स्टडी किया था ना, वो हाँ. टाइम पे मेरी लड़की भी मेरे पास में बैठी थी। वो अभी अच्छा. 10th। मैंने उसे बहुत बार बोला कि तू त्राटक स्टार्ट कर ले कंसंट्रेशन के लिए। हाँ. पहले वो करती थी लेकिन बीच में 6-7 महीने से उसने स्टॉप कर दिया था थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह। तो वो अच्छा. मैं मराठी में बताती थी तो उसे उतना ज्यादा समझ में नहीं आता था। हाँ. तो उसने आपका जो लेक्चर सुना ना, तब से हाँ. मुझे वो क्लास फिनिश होने के बाद तुरंत बोली कि मम्मा कल से मेरा तू स्टार्ट कर लेने का। मैं हाँ. बस अनुलोम विलोम त्राटक ये सब मेडिटेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। और कल से अच्छा. वो स्टार्ट कर दिया ये सब। अच्छा. तो तो अच्छा। 10th में अगर है तो 10th में तो आई थिंक स्टडीज वगैरह आई मीन बहुत सारा स्ट्रेस एक प्रेशर एक क्रिएट हो जाता है स्टडी. हाँ यस, वही वो थोड़ा सा प्रेशर आता था इसलिए मैंने उसे बोला था कि तूने थोड़ा सा मेडिटेशन एंड त्राटक स्टार्ट कर दे, हम्म. टेंशन नहीं आएगा तुझे। तो हाँ. नहीं सुनती थी मेरा, वो 6-7 महीने से बोलती थी हाँ करूंगी करूंगी ऐसा करती थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था ऐसा बोलती थी। हाँ. लेकिन कल से उसने 5:30 बजे ऐसा उठती है और स्टडी करके 8 बजे ऐसा स्कूल को जाती है वो ना। तो हाँ. उठने के बाद वो उसने तुरंत बोला कि मम्मा चल कल से हम स्टार्ट करेंगे बोल के। मैं अच्छा. करती थी तो साथ में बैठती नहीं थी वो, लेकिन कल से कर रही है वो। अच्छा लगा मुझे वो। ओके. तो वो सुबह अब 5:30 बजे उठ जाती हैं? यस मैम। ओके. क्या उनको कोई मतलब लाइक इससे पहले तो इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता होगा पढ़ाई का, क्या होता नहीं था? नहीं नहीं, 9 तक नहीं था, वो घर पे स्टडी करती थी, ट्यूशंस वगैरह कुछ भी नहीं था ना। अभी 10th बोल के ट्यूशंस भी रहते, 4 बजे स्कूल से आने के बाद 4:30 बजे ट्यूशन को जाती है, 7 बजे तक ट्यूशन रहता है, बाद में आने के बाद स्कूल का स्टडी ट्यूशन का स्टडी हम्म. एग्जाम, उसमें वो थोड़ा सा स्ट्रेस उसे आता था बहुत। हम्म. ओके. इट्स गुड अगर आप मेडिटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं और बाकी सब तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब कुछ डर हो या कुछ फियर फियर हाँ, हो. उसे ना कभी कभी ऐसा मैथ्स के पेपर जब सॉल्व करती है, क्वेश्चंस वगैरह, मैथ थोड़ा उसका वीक है, हम्म. तो टेंशन आता है। पेपर जब लिखने के लिए बैठती ना, उसे पता चलता है कि हाँ मैं ये गलत कर रही हूँ, आंसर्स गलत लिख रही हूँ।
पता चल के भी वो आंसर गलत लिखती थी। हम्म मैं बीच में टीचर से बात करने के बाद उसने अभी थोड़ा सा डर उसका कम हो गया है। और हम्म। बीच में उसके हाथ पाँव ठंड पड़ते मैम, मैं वो पूछने वाली थी कुछ एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन, कुछ आप बता सकते हो उसके लिए? तो नर्वसनेस होने पे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं? हाँ। ओके। तो आप मतलब एक तो ये है कि जब भी नर्वसनेस हो ना, मतलब हम्म। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये बेसिकली प्रैक्टिस है। जैसे अभी आपको त्राटक क्रिया के लिए उन्होंने खुद कहा ना कि मतलब यस। खुद से देखना है, तो ये बेसिकली क्या होता है, बच्चे के मन से खुद से आना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर कोई फोर्सफुली उन्हें कहे तो फिर तो आप नहीं करवा सकते। उसी तरीके से अगर कुछ उनका मतलब ध्यान रहे ना अपने उस पे कि अब जैसे कुछ आसन वो कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे वार्म अप, मतलब प्रॉपरली अगर आसन भी करें और थोड़ा सा प्राणायाम भी करें, तो आपके उस टाइम पे जब वो अपना एग्जाम दे रहे होंगे या जब भी कभी ऐसा लग रहा होगा कि उनको कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो अपने हम्म। प्राणायाम से अपने आप को वो बेटर कर सकते हैं। और जहां तक हीटअप होता है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप उनको एक लाइक एक सिंपल सा आपको एक वो बताती हूँ रेमेडी जो है, मतलब रेमेडी भी नहीं कहोगे, कि सिंपली जैसे ल्यूकवार्म पानी होता है ना, ल्यूकवार्म हम्म। पानी, आप उनको ल्यूकवार्म पानी में अपने अ, उनको पैर डिप करने के लिए दीजिए कुछ टाइम के लिए। रात को सोते टाइम करने के लिए रेमेडी? नहीं नहीं, सुबह, रात पे ओके। नहीं। रात में तो सिंपली पैर धो के सोना है। अगर अब तो खैर वैसे भी मौसम अगर जैसे बदल रहा है ना, तो मौसम के हिसाब से तो अपने ठंडे पानी को तो देना ही नहीं है। हल्का गुनगुना पानी से उनका पैर धोने का मतलब, और फिर हम्म। तब तो मोजे वोजे पूरा अच्छे से रख के, और बिना मोजे के ही सोना, मतलब जब सोने का है तो बिना मोजे के, तो वो ठीक रहेगा थोड़ा सा। अगर पानी भी, क्योंकि क्या होता है जितना भी ठंड है, अगर वो क्या वो मतलब मतलब डेली उसमें डज शी वेयर द स्लीपर्स या नहीं? नहीं नहीं। नहीं ना, तो जमीन नहीं। से ही तो आ रही है ठंड, जमीन से ही तो वो ठंड ज्यादा बढ़ रही है। ओके। तो अपना क्या होता है कि आपका जो अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहता है ना, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, ज्यादा से हम्म। ज्यादा इंसान अगर अपना ध्यान भी रखना लग जाए ना बहुत कम टाइम में, उसी में ही बहुत ज्यादा खुशी मिलने लग जाती है। और बच्चे का अपने आप में ये लगता है कि हाँ मैंने अपने लिए कुछ किया जो और लोग नहीं कर पा रहे हैं। और जितने भी बच्चे हैं, अगर कुछ ऐसा होता होगा ना, बच्चों में भी ऐसा होता है, टेंथ तक तो आते आते एक एक हो जाता है, एक डर रहता है कि हाँ अच्छा अच्छा मतलब जो है, नहीं तो मतलब सही सही से अपना अपना या तो टॉप करने का रहता है कि हमें टॉप करना है, या फिर रहेगा कि हमें अच्छे अच्छे वगैरह मार्क्स वगैरह चाहिए क्योंकि टेंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। तो इसीलिए फिर अपना ध्यान रखना तो सबसे पहले जरूरी है। तो उसके लिए आपको मैंने मतलब अगर पहले तो ये रहेगा कि अपने पैरों को बिल्कुल अच्छे से ढक के रखें, वो बहुत जरूरी है। पैर ढकना बहुत जरूरी है, और स्पेशली अब जैसे और कुछ टाइम में थोड़ा सा चेंज रहेगा। डज शी वॉच टीवी एज वेल, वेरी फ्रीक्वेंटली टीवी टीवी नहीं नहीं नहीं। एंड एवरीथिंग? नो, नो मैम। टीवी एंड मोबाइल एंड ऑल नहीं? नहीं नहीं, टाइम ही नहीं मिलता संडे के दिन। हम साथ में बैठ के कार्टून मूवी वगैरह ऐसा कुछ तो देखते हैं तीनों चारों मिलके। बाकी ऐसा टीवी वगैरह ऐसा टाइम ही नहीं है उसे। अच्छा, और आपका कैसा रहता है स्वाति जी, आप कैसे? शेड्यूल। हाँ। मेरा तो अभी उसके 10th की वजह से मैंने पार्लर का तो थोड़ा बंद ही कर दिया। मैंने खाली मेकअप के ऑर्डर्स लेती हूँ। और फेस योगा अच्छा। का मॉर्निंग मेरा 10 बजे एक क्लास रहता है। हम्म। वो क्लास बस मैं अच्छा, घर पे। फेस योगा, आप फेस योगा सिखाते हैं? यस मैम। ओ ग्रेट। तो फेस योगा से आई थिंक आप तो, अगर फेस योगा टीचर हो, तो आप तो बहुत अच्छे से मतलब जो एक्सप्रेशंस होते हैं कि मतलब हैप्पी एक्सप्रेशंस और वो तो आप मतलब फेस योगा से तो आप बहुत कुछ हील कर सकते हो। आपकी में तो हीलिंग कैपेसिटी है बहुत। हाँ मेरा मैम अभी अगस्त में मेरा क्लास खत्म हो गया। और हम्म। अभी मैं 9 अगस्त सितंबर से मैंने बैचेस स्टार्ट कर दी। 2 ही महीना हो गया मेरा स्टार्ट होके।
अच्छा, तो आपने कोर्स कंप्लीट किया था, आपने कहाँ से कोर्स कंप्लीट किया है स्वाति जी? हट योगा इंस्टीट्यूट बोल के बानेर में है, इधर पूना में, उधर से। आपने फिजिकल क्लासरूम लिया या ऑनलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन। अच्छा, तो ऑनलाइन क्लासरूम में कैसा था, मतलब आपका पूरा अच्छा सही रहा, आपको सर्टिफिकेट भी मिला? हाँ मैम, सर्टिफिकेट भी मिला। डेली एक 1 घंटे का वो क्लास रहता था। हम्म। टॉक्स, ड्रिंक्स, डाइट, ये पूरा 1 महीने में मैम ने हमें वो पूरा समझाया दिया था। हम्म। अच्छे से हुआ वो कंप्लीट। ओके, तो उसके बाद आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दी, आपको कहीं प्लेसमेंट दिया? नहीं मैम, मैंने पूछा ही नहीं एक्चुअली उन्हें, हम्म। क्योंकि मुझे अभी 10th, मेरी लड़की की 10th की वजह से मैंने पूछा भी नहीं उनको कि अभी उसकी 10th होने के बाद में थोड़ा सा मेकअप आर्टिस्ट, योगा, ये बहुत मुझे थोड़ा सा टाइम टाइट जा रहा है शेड्यूल मेरा। ओके, तो आप अपने बच्चे को टाइम दे पाते हैं? हाँ मैम, इसलिए मैंने वो पार्लर का बंद ही कर दिया ना, 1 साल हो जाएगा अभी। हम्म। अच्छा, तो अब आप कंप्लीटली एज अ फेस योगा, अपने फेस योगा पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ना? यस मैम, यस। हम्म। हम्म। ओके, ठीक है, मतलब आप अगर फेस योगा पे देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। अ, वही मुझे ज्यादा। खुद में बहुत सारा मेरे चेहरे के ऊपर भी ना एक्ने प्रॉब्लम बहुत था, अनइवन पैचेस भी बहुत थे। हम्म। बहुत डिफरेंस दिखाई दिया मुझे उसमें। और योगा मैं कभी कभी करती थी खुद के लिए, कभी नहीं करती थी, तो अभी डेली 2-3 महीने से मैं मेडिटेशन सुबह करती हूँ। हम्म। प्राणायाम भी, सॉरी, सूर्य नमस्कार भी टाइम नहीं मिला तो भी 4 बजे 5 बजे ऐसा थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद के लिए करती हूँ। ओके। ऑल राइट, तो खाना पीना कैसा है आपका और बच्चे का? बच्चों का तो टाइम पे चलता है, मेरा थोड़ा इधर उधर होता है खाने का। हम्म। लेकिन दोनों बच्चों का खाने का डाइट वगैरह अच्छे से मैं संभाल लेती हूँ मैम। ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स उसके उन्हें खाने में मिलने चाहिए, और फ्रूट्स, हम्म। ड्राई फ्रूट्स, ये सब टाइम पे देती हूँ मैं उनको। अ, स्वाति जी, मुझे लगता है कि जो बच्चों का बिहेवियर होता है ना, बिहेवियर में सब कुछ आता है। आप यस बच्चों का देख मैम। लीजिए कि चाहे उनमें इमोशंस कुछ भी हो, मैं मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ इमोशंस की बात नहीं कर रही, बिहेवियर हम्म की भी बात कर रही हूँ, और बहुत कुछ जो है, बच्चे एक्सप्रेसिव नहीं अगर होते तो वो कहीं ना हम्म कहीं आपके इर्द गिर्द क्या है वो समझ रहे होते हैं, और वो इमोशंस कैच कर रहे होते हैं, समझ रहे हो, और उससे उनकी लाइफ पे भी इम्पैक्ट आता है। तो आप सबसे पहले अपना ध्यान रखना शुरू करिए। इट्स गुड यस। कि आपने फेस योगा में अपना सर्टिफिकेशन लिया, और अब आप फेस योगा के आप इतने अच्छे एक्सपर्ट बनी है कि आप इमोशंस रीड कर सकें, और फेस योगा के थ्रू जो एक पॉजिटिविटी होती है ना चेहरे की, आप वो लेके आए। बच्चे की सैडनेस वगैरह आपको सब समझ आ जाएगी, किसी की भी आपको सब समझ आ जाएंगे इमोशंस फेस योगा में, तो आप उस हिसाब से अपने आप को बनाइए अच्छा सा। यस मैम। क्योंकि फेस योगा आज के टाइम पे, पहले फेस योगा नहीं हुआ करता था। अब फेस यस। योगा बोलने में लोग उसको ना बहुत ग्लैमराइज करते हैं, ठीक है, वो यस। ग्लैमराइज नहीं करना है। बट फेस योगा मीन्स कि जो आपका आप फेस योगा के थ्रू आप हीलिंग दे रहे हैं, मतलब हीलिंग कह लो या कुछ भी है, एक्सप्रेशंस जो है वो सही रहे, और वो चाहे किसी के भी हो वो बढ़िया रहे, और आप अपना सबसे पहले ध्यान रखें, अपना सेल्फ के लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कोई भी अगर कुछ हो तो डेफिनेटली आप उसमें अगर आप ठीक रहेंगे तो जो बच्चों का भी है ना, बच्चे भी उस हिसाब से जो है, जैसा आपको देखेंगे, जैसा आप फील कर रहे हो ना, अगर आपका कोई इमोशन है, आपका कुछ ऐसा इमोशन है कि आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, या आपका हार्ट बीट का जो है वो रेट कम है, मतलब ठीक नहीं है, ऊपर नीचे है, तो उससे आप ये अपना देखिए कि बच्चों के ऊपर कोई ना कोई इमोशनल इफेक्ट आ सकता है। वो डर के थ्रू हो, वो डर के फॉर्म में हो सकता है, वो कंपटीशन के फॉर्म में हो सकता है, वो एंगर के फॉर्म में हो सकता है।
तो ये आपको अपना अपना मतलब आप मत उसमें डरिए कि क्या हो जाएगा या कैसे हो जाएगा, आप तो खुद योगा एक्सपर्ट हो गए हो। तो आपने तो पॉजिटिव रहना है और आपने बल्कि कुछ अपना स्पेशलाइजेशन को ही यूटिलाइज करना है कि आप और लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हो, आप और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो। इट्स ओके टू फील नॉट ओके, इट्स ओके टू फील नॉट ओके, बट इट्स गुड टू स्टार्ट विथ सम पर्पस। तो आपके पास पर्पस है, सो अगर आपके पास लाइफ का पर्पस है तो आई थिंक आप धीरे धीरे चल के जो है आप अपने अंदर भी चेंजेस ला सकते हो। सी बूमा जी का एक एग्जाम्पल था ना, बूमा जी ने अपने आप में एक हेल्दी डाइट से चेंज किया, सिर्फ 20 दिन हुआ उनको, आई थिंक 14 डेज और 20 डेज, राइट बूमा जी? Yeah. हाँ। सो इट्स जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट, उन्होंने अपनी हेल्थ के एस्पेक्ट पे वर्क किया, उन्हें कुछ लगा होगा कि मुझे अपनी लाइफ में ये चेंज लेके आना है, so she got this kind of a change with the food। आपने तो आपके पास तो एक अच्छा सर्टिफिकेशन है फेस योगा। अगर आपको कोई चैलेंजेस आते हैं, सी कभी भी आप कोई भी सर्टिफिकेशन लेते हैं ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको चैलेंजेस ना आए। मैंने किड्स योगा सर्टिफिकेशन लिया है, मैंने खुद बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं। मतलब मेरे पास कुछ भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली, मुझे बहुत फेलियर्स मिले, मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले, एंड आई वाज लाइक कि मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं रह गया और मैंने उसी को ही अपना पर्पस बनाया। ठीक है। यस मैम। तो इट्स ओके आपका जो अगर फेस योगा है, आप फेस योगा पे अपना जो है ध्यान दीजिए। यस मैम। नीलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ मैम। हाँ बताएं। नहीं, मैं आपने बताया ना, मैं सुन रहा हूँ। नहीं आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। नहीं नहीं, मैं कहना तो कुछ नहीं चाह रहा था। वो तो आपने मैंने डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स किया है, वहां से आरोग्यम इंस्टीट्यूट से किया है। कहाँ से? आरोग्यम इंस्टीट्यूट करके है, वहां से किया है। आरोग्यम इंस्टीट्यूट कहाँ है, कौन सा है? वो दिल्ली का है। आपने ऑनलाइन किया है? ऑनलाइन किया था मैंने। आरोग्यम इंस्टीट्यूट, आप तो नोएडा बता रहे थे पहले। नहीं, अपना बात ही फर्स्ट टाइम हुआ है ना ये, इसके बारे में तो शायद नोएडा में। नहीं मैंने तो अभी नोएडा। तो कोई बात ही नहीं किया, मैंने तो कोई बात ही नहीं किया, आपने खुद ही शुरू किया है। हाँ, वो मालूम नहीं, मैंने दिल्ली से किया हुआ है। वो लोग अच्छा टीच करते हैं। अच्छा वो ओके। एक्चुअली जो प्रभा डॉक्टर जी होते हैं ना, आप जो कुछ कहना बीएमएस। चाह रहे हैं? अच्छा किसी के पास कोई और कुछ और शेयर करना है? एक बात शेयर करनी है मैम मुझे। अपने जो उन्होंने बताया ना, स्वाति जी ने, कि ड्राई फ्रूट। हम्म। तो जो अपन ड्राई फ्रूट है ना, अगर रात को भिगो देते हैं, जैसे अपना एप्रिकॉट हो गया, आलमंड हो गया, हम्म। किशमिश हो गया, तो हम्म। उसको क्या, एक कटोरी पानी में अगर 2 अखरोट ले लो, 5 बादाम ले लो, थोड़ा किशमिश ले लो, उसको अगर अपन रात को सोक करके है, और सवेरे जब बच्चा उठता है तो उसको अगर एम्प्टी स्टमक लेते हैं ना, तो उससे बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि उसको भिगोने के बाद उसका न्यूट्रिशन 2 गुना हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भाई उसको कभी बिना भिगोए खाना भी नहीं चाहिए, ड्राई फ्रूट। हम्म। तो वो अच्छा रहता है, बस एक मैं शेयर करना चाहता था कि आप कर सकते हो। आपने डाइट एंड न्यूट्रिशन में आप बता रहे हैं ना, आपने भी डाइट एंड न्यूट्रिशन का कुछ हाँ, किया मैंने कोर्स किया है मैम। आरोग्यम से? यस मैम। ओके। ओके। ऑलराइट। तो नहीं वो तो सब ठीक है, मतलब आप अ, जो है सात्विक फूड वगैरह जैसे हैं, आप आजकल तो ड्राई फ्रूट्स भी कोई अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप अगर सही जगह से सब कुछ लेते हैं वो ज्यादा बेटर है। ओके किसी और का कुछ अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कोई अच्छा कदम?
ओके, पूजा पंधारे जी, आप हैं यहाँ पे? मैम, आप क्या कहना चाहोगे सात्विक डाइट पे? अभी हमको तो पता है मैम कि आजकल कुछ भी प्योर नहीं है, हम्म इसलिए जितना हो सके घर में कुक करते हैं वही खाए। और वैसे ही आदत बच्चों को भी लगानी चाहिए, हर पेरेंट्स को। अगर हम खुद ही बाहर का खाना खाएंगे तो बच्चे ऑब्वियसली कि वही फॉलो करेंगे। पेरेंट्स करते हैं तो हम क्यों नहीं? तो फिर आगे उनकी लाइफस्टाइल भी वैसी होगी। इसलिए अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, तो वो उसकी शुरुआत हम अपने से करनी चाहिए, तो बाद में बच्चे सीखेंगे। तो फिर लाइफस्टाइल हो, खाने के बारे में हो, या आजकल मोबाइल का यूज भी देख रहे हैं, जैसे पॉजिटिव उसके है फायदे जो है, तो लूजे उसके बहुत से ऐसे साइड है कि उसका बैड इफेक्ट बच्चों पे हो रहा है। तो पहले हम उसको अवॉइड करना चाहिए बच्चों के सामने, बाद में बच्चों को भी वैसे बैड आदतें नहीं लगे। राइट, गुड। एंड पूजा जी, आपका व्हाट डू यू वांट टू शेयर? अगर कुछ आप शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक आई हैव सीन यू एज अ फिटनेस enthusiast. ओके, देयर इज अ नॉइज अराउंड मी. हाँ, श्योर. Okay, good that you have cut down sugar intake. Okay, good to have that New Year resolution for 2025. हाँ, खुद से भी और मतलब दूसरों से भी शुगर नहीं लेना ना. हाँ, देना भी नहीं और लेना भी नहीं. I have lost almost 11 kgs since then. Okay, nice. Good. तो इससे आपके बहुत ही एस्पेक्ट पे आपको बहुत चेंजेस लग रहे होंगे, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो, इमोशनल एस्पेक्ट हो, है ना? एवरीथिंग. We feel less bloated when we cut down on refined sugar. Okay, nice. अच्छा, प्रभा जी ने मुझे कुछ दिन पहले कहा था, मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो प्रभा जी, प्रभा दास. हाँ मैम। हाँ, आपने कुछ कहा था कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे. मैम मतलब कि मैं सुबह सिर्फ तुलसी का जो पत्ता होता है, हम्म अब वो बॉईल करके सिर्फ पानी पीती हूँ। लेकिन मैम मेरा एक ही है कि मैं मीठा नहीं छोड़ सकती हूँ, तो इसी के लिए मतलब मेरा वेट भी नहीं कम रहा है। मैम अच्छा, मुझे मतलब एक दिन भी मिठाई नहीं खाती हूँ तो मतलब रात को भी सपना आ जाता है कि मिठाई नहीं खाया। तो मैम मैं कैसे इसको मतलब छुड़ा, वही मतलब नहीं हो पा रहा है मुझसे। पूजा जी, आंसर. यू कैन टाइप, शी विल रीड. आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं ना प्रभा जी? हाँ मैम मैंने पढ़ लिया उन्होंने क्या लिखा। उनका 11 kg वेट भी लॉस हुआ। हाँ. Ma'am, बट लेकिन मैं I छोड़ ही don't नहीं have सकती, any trick इसलिए for मुझे that. मीठा चाहिए। It's just self-control maybe. And I started with portion control first of all. मतलब एकदम ही बंद नहीं किया. Just portion control से start किया and then I reduced it to almost nil. वही मैम मतलब जैसे वो लोग मतलब बच्चे को अच्छे तो से आप खिलाते हैं। कम कर सकते हो instead of पूरा ही बंद करना नहीं, मतलब थोड़ा कम करते जाओ and then at certain point you can just close, मतलब पूरा ही बंद कर देना once you get habituated with.
पोर्शन कंट्रोल। हाँ, जैसे कि स्वाति मैम ने भी बोला कि उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से डाइट करते, मतलब खाना वाना देते अच्छे से, ड्राई फ्रूट। मेरा बच्चे ऑलरेडी प्लेयर है, तो वो लोग मुझे समझाते हैं कि मुझे माँ मीठा मत खाओ, मीठा मत खाओ। वो लोग जंक फूड नहीं खाते हैं, लेकिन मैं ही खा लेती हूँ। अच्छा, तो आपका तो जंक ये मतलब वेट ही नहीं कम रहा है। तो मैं चिकन उकन नहीं खाती हूँ, लेकिन मीठा मतलब छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। हम्म, तो मैं मीठा अब छोड़ क्वांटिटी कम कर दूं खाने की, मीठा वो खाने ही की। इसके लिए मतलब मेरा वेट नहीं कम रहा है। आप अपने टेस्ट बड्स को ठीक करिए ना। अगर आपका स्वीटनेस पे जा रहा है तो आप अपनी टंग को, स्वीटनेस भी है, सार भी है, बिटर भी है, सॉल्टी भी है, तो आप कौन सी साइड पे लेके जाना चाहते हो अपने टेस्ट को, वो देख लो। मैं दूसरा साइड में जाता ही नहीं है। मतलब मीठे पे ज्यादा जाता है। मैम जैसे कि शुगर का जो क्रेविंग होता है ना, ये जो हम्म, बता रहे हैं ना प्रभा जी, उसको है ना आप हनी से रिप्लेस कर सकते हैं अपन। पता नहीं, देख ट्राई करेंगे। हनी, हाँ, हनी ठीक रहता है, बट नहीं, आई कि थिंक। एक क्रेविंग होता है ना मैम, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो अपना जो जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वहां से जो केमिकल रिलीज होते हैं, जो आपने मैंने आपको बताया वो हैप्पी हार्मोन वाला, तो ये है ना, उनको अगर हनी से रिप्लेस करेंगे ना तो वो बेटर रहेगा, उससे हो जाएगा उनका शुगर कंट्रोल। ट्राई नहीं कर। मिलेगी, नहीं, हनी से उतना नहीं होगा। आप हनी भी तो अल्टीमेटली आजकल क्या प्योर हनी आपको मिल रहा है कहीं? चीनी मिक्स कर, शुगर मिक्स करता है। उसमें आप कुछ देर तक अगर हनी रखोगे ना तो उसपे एक लेयर आ जाएगी व्हाइट कलर की, वो शुगर ही होती है। तो ओरिजिनल या तो मिलना अगर जरूरी है मैम। आपके आपके कहीं गांव में या आपके किसी दोस्त के पास हो जो आपको, जैसे आपने अपने दोस्त का बताया कि आपके दोस्त हैं जो अच्छा खासा खान पान करते हैं, तो आप बता सकते हैं ना? नहीं। हाँ, उनके उनके वहां पे उनके खेतों में तो इतने बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं आप लोग, वो मध के जो पुड़े होते हैं ना, इतने बड़े बड़े हम्म, झाड़ पे लगे होते हैं उनके वहां पे तो। अच्छा, तो तो वहां पूड़े, से वो लोग तो निकाल लेते हैं। पूड़े तो किनको खिलाते हैं? अरे आपके क्या दोस्त? बोलते हो आप, मध के पुड़े को क्या बोलते हो हिंदी में आप? जो उनका घर होता है ना, उनका जो घर हनी बनाते हैं कोम, ना, वो हनी जो कोम। फूलों से रुस चुस 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 के फिर वो बनाते हैं ना, वो जो क्या बोलते हैं हम्म, उसको? हनी कोम। छत्ता, हाँ तो छत्ता, वो, छत्ता। हाँ, हाँ तो छत्ता। वहां से फिर वो लोग निकाल देते हैं वो। ओके। तो वो ओरिजिनल मिल जाता है, गाँव में मिल जाता है मैम। शहरों में तो आपने जो बोला ना, सब कुछ मिक्स, हाँ हाँ। शॉर्टकट सब हम्म, जगह पे हो गया है पैसों कमाने का, वो इसलिए वो लोग पूरा वही देते हैं, वो भेड़छेड़ करते हैं अंदर मिक्स, सब कुछ हम्म, करके देते हैं फिर। ओके। तो नीलेश जी, आपको मतलब वो मतलब मिलता रहेगा ना, मतलब होता होगा आपके पास? मिलता है मेरे को तो। अच्छा। पर ओके। मैं तो शुगर ही कम लेता हूँ एक्चुअली, हम्म। और हनी का इतना ज्यादा मैं यूज नहीं करता हूँ। पहले हम्म। करता था वो, थोड़ा वो वाटर बॉईल करके मॉर्निंग में उसमें नींबू निचोड़ के और एक चम्मच हनी डाल के फिर उसको मिक्स करके फिर एम्प्टी हम्म, स्टमक पीता था मैं पहले। पर अभी मेरे को उसकी जरूरत नहीं है, अभी मैं नहीं पीता हूँ। अच्छा। तो प्रभा जी, आप तो अपना मतलब, अगर आपको लगता है ना, आप सबसे पहले कहीं सॉल्टी साइड पे जो आपको अच्छा लगता है ना खाने में, स्वीटनेस हाँ, की, तो आप अपना थोड़ा सा टेस्ट जिसमें आपको लगता है कि हाँ आपको खाने का अच्छा लग रहा है, और आपकी जो वो है, मतलब जो हंगर है, एक, अगर आपको स्वीट की हंगर है तो आप उसको मतलब चेंज करिए, मतलब सॉल्टी साइड में लेके जाइए। या फिर आप कुछ मतलब आंवला ट्राई कीजिए ना, आंवला खा सकते हैं आप? मैम खाती हूँ तो लेती हूँ आंवला कैंडी। अच्छा, वो तो लेती हूँ। कि आप मतलब ठीक है, फिर मतलब आपके डाइट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, आपका मतलब ठीक है, अगर इतना आप खा सकते हैं तो डेफिनेटली आप ये जरूर देखें कि स्वीट अवॉइड करें लेट नाइट। तो वो तो ओके। हैवी वगैरह लगेगा, और स्वीट का तो आप धीरे धीरे करके जो है खत्म कर दीजिए, मतलब स्वीट लेना तो खत्म कर दीजिए।
और अगर कुछ है तो मतलब ठीक है, उतना लिया जितना ठीक है, बहुत मैम ही। कितना ठीक है एक दिन में? हाँ, मैम एक दिन में कितना ठीक है? आई थिंक शुगर के फॉर्म में ना लें, स्वीट्स के फॉर्म में ना लें। एक आप कुछ देख सकते हैं कि मतलब अगर आपको लगता है कि कुछ आपको स्वीटनेस में कुछ लेना है, तो जैसे अगर आप मतलब कुछ भी ऐसा हेल्दी ड्रिंक लेते हैं, कुछ भी अगर कोई हेल्दी ड्रिंक होता है ना, तो उसके हाँ, फॉर्म में जो प्रॉपर तरीके से, जिसमें सिंथेटिक ना हो और जो कोई पैकेज वाले ना हो, उस तरीके का कुछ आप देखें। शुगर केन जूस, हाँ, विल बी गुड। ओके मैम। शुगर मैम, शुगर की जगह गुड़ ले सकते हैं, जैगरी। हाँ, जैगरी भी बढ़िया रहता है। आप सौंफ भी ले सकते हैं, राइट। ओके फेनल ओके सीड्स भी अच्छी होती हैं। अगर आप सुबह में, मतलब ओवरनाइट, आप फेनल सीड्स एक ग्लास के उसमें एक ग्लास में फेनल सीड्स कुछ रख लें, ओवरनाइट वो भिगो के रखें। फेनल सीड्स सुबह में निकाल लीजिए और सुबह में ले लीजिए। वो बहुत आपको एक फ्रेशनेस, कामनेस देता है, वो भी बहुत अच्छा ओके रहता है। कोकोनट शुगर इज ऑल्सो गुड। यस, Buma ji has said coconut sugar is also good. हाँ, coconut, I have a citrus fruit like orange and guava. हाँ, तो फ्रूट्स में तो आप फ्रूट इनटेक जैसे 1 बजे लेते हैं ना, या 1 1:30 बजे, वो टाइम बहुत अच्छा रहता है। हैविंग द जूसेस एट दैट टाइम ना, वो बहुत अच्छा रहता है। और जितनी भी नींद आती है ना, वो नींद भी नहीं आती, कम लगता है, मतलब एनर्जेटिक लगता है, वो भी बढ़िया रहता ओके मैम। है ना। ओके मैम। तो आज तो हमने ढेर सारी बात की है, तो हम अपना सेशन कल रख, ठीक है। और थैंक यू फॉर योर, यू हैव शेयर्ड सो मेनी गुड थिंग्स इन द चैट बॉक्स। इट्स रियली गुड। मुझे तो ऐसा चैट बॉक्स ओवरलोडेड चाहिए। बढ़िया हो जाएगा एकदम। और जितने लोग होंगे, और जितना चैट बॉक्स, आप कोई कुछ, आप अपना कैमरा ऑफ रखें, आप कुछ ना बोलें, आप चैट बॉक्स ओवरलोड कर दें, बढ़िया रहेगा। सबके अपने अपने आंसर्स होंगे और सबको अच्छा अच्छा वो मिलेगा, आइडियाज मिलेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी, जितना भी अभी हमने ठीक है, मतलब इतने टाइम तक सब हम पढ़ ही रहे थे, बट उसके अलावा में सबके लिए जितने जितने अगर आंसर्स होंगे ना, जितना भी हमारे पास टाइम है रिमेनिंग, तो उतने में अगर सबकी अपनी अपनी हेल्प हो जाएगी, तो आई थिंक इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और क्या होगा। नहीं, ऑल राइट। सो I am going to start and end with the prayer, with the opening prayer and the closing prayer all together. Okay? Sit back comfortably. Join your palms together to the center. Gently close your eyes. Breathe in deeply and breathe out. Once again, breathe in deeply and breathe out. Let's begin with the Om chanting, followed with the opening prayer. Om. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ। शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः।
Take your palms together and generate heat. Place your palms on your eyes. All over to your face. Take the palms gently in front of you. Open your eyes. Look at your palms with a gentle smile on your face. Thank you everyone, and I would like to have your attendance please. अच्छा, जिसको भी अपना कैमरा ऑफ रख के भी अटेंडेंस लगवानी हो तो वैसे भी कर सकते हैं. मैम आपने वो बोला था ना पीडीएफ मेल करने का, तो पीडीएफ का मेल आया नहीं है अभी तक में. हाँ, जो सिलेबस है ना उसका आपने बोला था ना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा आंसर के साथ. कौन सा पीडीएफ नीलेश जी? में बात हुआ था ना, और लगभग फर्स्ट या सेकंड डे को बात होता है ना, वो जो पीडीएफ होता है ना, जो अपना जो सिलेबस है ना. आप देख ही नहीं रहे हो. यू आर नॉट विजिबल टू मी. हाँ हाँ अभी दिख रहा हो? हाँ हाँ. पीडीएफ का बोला था ना मैम आपने, जो आपने जो सिलेबस दिया था ना, हम्म. तो उसका डिटेल में पीडीएफ का आपने बोला था ना, पीडीएफ में भेजूंगी आपको, ऐसा बोला था ना आपने. क्या भेजना था? नोट्स भेजने थे? हाँ, मेल पे आपने बोला नोट्स मिल जाएंगे आपको. हाँ, तो वो मिलेंगे ना, मतलब मुझे प्रिपेयर तो करने दो. ओके 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 मैम. मुझे एक्चुअली क्या है, सबके आंसर्स मतलब ऐसे आ रहे हैं कि इंग्लिश में भी चाहिए और हिंदी में भी चाहिए. ठीक है तो मैम. इसलिए मुझे पहले इंग्लिश में भी पूरा टाइप करना पड़ेगा, हम्म. है ना. मुझे पूरा टाइप करना पड़ेगा, पूरा लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में मुझे हिंदी में भी लिखना पड़ेगा. तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा काइंड ऑफ आई थिंक 1-2 दिन तो चाहिए रहेंगे. ओके मैम. तो वैसे तो 24 घंटे तो मैं काम नहीं कर सकती, बट कुछ ना कुछ देखते हैं कि आपको जल्दी मिल जाए, चलो. है ना. तो क्लास पहले प्रॉपर अटेंड करिए, रेगुलरली अटेंड करिए, तो फिर आपको मिल जाएंगे नोट्स, मतलब 1-2 दिन नीचे. ठीक है. ओके. ओके. ऑल राइट. थैंक यू एवरीवन. विल मीट टुमारो एट 7 AM. ओके. थैंक यू एवरीवन. Thank you. Thank you, ma'am. Good night. ओके. मैम.